गुड मॉर्निंग एवरीवन। फोटोसिंथेसिस की रीडिंग बहुत टाइम से बाकी है, वो ख़त्म कर लेते हैं। ऑब्वियसली यू आर वेल अवेयर कि अभी मैंने एनसीईआरटी के स्क्रीनशॉट डालना बंद कर दिया है, तो अपनी अपनी एनसीईआरटीज ओपन कर लो। पेज नंबर 206 पे आ जाओ। चैप्टर 13 फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। ऑल एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड। हैव यू एवर वंडर्ड फ्रॉम वेयर प्लांट्स गेट देयर फूड? Green plants, in fact, have to make or rather synthesize the food they need, and all other organisms depend on them for their needs. Green plants carry out photosynthesis, a physico-chemical process by which they use light energy to drive the synthesis of organic compounds. Ultimately, all living forms on earth depend on sunlight for energy. The use of energy from sunlight by plants doing photosynthesis is the basis of life on earth. Photosynthesis is important due to two reasons. It is the primary source of all food on earth. It is also responsible for the release of oxygen into the atmosphere by green plants. Have you ever thought what would happen if there were no oxygen to breathe? This chapter focuses on the structure of the photosynthetic machinery and the various reactions that transform light energy into chemical energy. 13.1 What do we know? Let us try to find out what we already know about photosynthesis. Some simple experiments you may have done in the earlier classes have shown that chlorophyll, that is the green pigment of the leaf, light and CO2 are required for photosynthesis to occur. है ना, मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट वगैरह तुमने पढ़ा होगा, जिससे प्रूव हुआ था कि CO2 इज रिक्वायर्ड। आएगा आगे 10th स्टैंडर्ड में, अपन ने ये सब चीज़ें पढ़ी हुई है। ठीक है, तो कहाँ पर थे अपन? हाँ, यू मे हैव कैरिड आउट एक्सपेरिमेंट टू लुक फॉर स्टार्च फॉर्मेशन इन टू लीव्स। अ वेरीगेटेड लीफ, वेरीगेटेड लीफ मतलब क्या? आगे लिखा हुआ है, अ लीफ that was partially covered with black paper. ब्लैक पेपर नहीं है, ब्लैक पेपर, काला कागज, जिसके कारण उसको लाइट नहीं मिलेगा तो उसमें का स्टार्च यूजअप हो जाएगा। ठीक है, एंड तो उसको बोलेंगे वेरीगेटेड लीफ। एंड वन दैट वाज एक्सपोज्ड टू लाइट। On testing both these leaves for starch, it was clear that photosynthesis occurred only in the green parts of the leaves in the presence of light. ठीक है, जहाँ पर जिसको अपन ने काले कागज से कवर करके रखा था लीफ के जितने पोर्शन को, उतने पोर्शन में स्टार्च अपने को नहीं मिलेगा। ये सीधा सीधा एविडेंस है कि लाइट इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, नेसेसरी, एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, आ जाएंगे पेज नंबर 207 पे। अनदर एक्सपेरिमेंट यू मे हैव कैरिड आउट इज द हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट मोल नाम के साइंटिस्ट ने किया था, MOLL, तो इसको मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। 10th में पढ़ा हुआ है तुमने। Where a part of a leaf is enclosed in a test tube containing some potassium hydroxide soaked cotton. पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से गीला किया हुआ कॉटन। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में क्या रहता है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड CO2 का एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो KOH soaked cotton which absorbs CO2 while the other half is exposed to air. The setup is then placed in light for some time. On testing for starch later in the two halves of the leaf, you must have found that the exposed part of the leaf tested positive for starch while the portion that was in the tube tested negative. This showed that CO2 was required for photosynthesis. Can you explain how this conclusion could be drawn? Obviously सीधी बात है, जो पोर्शन अपना KOH सोक्ड वाले टेस्ट ट्यूब में था, उतने पोर्शन में फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, है ना, लाइट देने के बावजूद। इसका मतलब लाइट के साथ साथ CO2 भी फोटोसिंथेसिस के लिए कंपलसरी है। अब ये तो हो गया वो सब अपना प्रीवियस रिवीजन जो अपन ने बचपन में पढ़ा हुआ है ना, 5वीं से पढ़ते आ रहे हैं अपन ये सब चीज़ें, इसमें कुछ नया नहीं है अभी। लेकिन अपना एज अ पर्सन हिस्ट्री छोड़ो, अभी ह्यूमैनिटी एज अ स्पीशीज, कैसे फोटोसिंथेसिस को एक्सप्लोर करते गए, अभी लेट अस मूव टुवर्ड्स दैट पोर्शन। So let us move towards early experiments. It is interesting to learn about those simple experiments that led to a gradual development in our understanding of photosynthesis.
जोसेफ प्रिस्ली इन 1770। देखो मैंने उसका बर्थ ईयर और बर्थ डेट पढ़ी भी नहीं, क्योंकि पढ़ के कुछ फ़ायदा भी नहीं है। मेरे को नहीं लगता इसके ऊपर ऐसा क्वेश्चन नीट वाले बनाएंगे कि कब पैदा हुआ था या कब मरा जोसेफ प्रिस्ली। ठीक है, ऐसा मेरे को नहीं लगता कि ऐसा बनाएंगे। दूसरी बात, मेरे को ये भी नहीं लगता कि बनाना भी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये कोई साइंस से रिलेटेड चीज़ ही नहीं है भाई। वो बर्थ कब हुआ, कब वो उसकी डेथ हुई, उससे क्या करना है, उसने क्या एक्सप्लेन किया, वो समझना इज मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो जोसेफ प्रिस्ली इन 1770 परफॉर्म्ड अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स that revealed the essential role of air in the growth of green plants। ठीक है, रोल ऑफ एयर। प्रिस्ली यू मे रिकॉल, एयर, हाँ, उसको ऑक्सीजन और CO2 अभी पता नहीं था 1770 में। 1770 ये डेट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि 1770 में उसने सिर्फ एयर का इंपॉर्टेंस बताया, ऑक्सीजन का नहीं, क्योंकि उसको ऑक्सीजन पता ही नहीं था 1770 में। फिर उसको कब पता चला ऑक्सीजन के बारे में? आगे की लाइन है, प्रिस्ली यू मे रिकॉल डिस्कवर्ड ऑक्सीजन इन 1774। प्रिस्ली ऑब्जर्व दैट अ कैंडल बर्निंग इन अ क्लोज्ड स्पेस, अ बेल जार, बेल जार मतलब क्या है, साइड में डायग्राम दिया हुआ है, soon gets extinguished। Similarly, a mouse would soon suffocate in a closed space। He concluded that a burning candle or an animal that breathed the air both somehow damage the air। अब damage the air मतलब वो ऑक्सीजन यूज अप कर लेते उसमें का, और क्या। लेकिन उसको ऑक्सीजन ही पता नहीं था ना 1770 में। ऑक्सीजन तो उसने 1774 में डिस्कवर किया, अभी तक उसको ऑक्सीजन ही पता नहीं है बेचारे को। तो उसने ये सोचा कि एयर को खराब करते, कैसे खराब करते, क्या करते, डजंट नो। बट व्हेन ही प्लेस्ड द मिंट प्लांट इन द सेम बेल जार, he found that the mouse stayed alive and the candle continued to burn। Priestley hypothesized as follows: plants restore to the air whatever breathing animals and burning candles remove। Whatever, ऑक्सीजन नहीं पता था उसको, whatever, ऑक्सीजन उसने 1774 में डिस्कवर किया, बाद की बात है वो। Can you imagine how Priestley would have conducted the experiment using a candle and a plant? Remember, he would need to rekindle the candle to test whether it burns after a few days। मतलब उसने मिंट प्लांट रखा, अब एकदम से तो धड़ाधड़ ऑक्सीजन रिलीज नहीं करेगा मिंट प्लांट, है ना, तो कैंडल तो बुझेगी ही। फिर अब उस बेलजार को उठा के अगर वो कैंडल जलाएगा तो मतलब ही नहीं है। तो बेलजार को उठाए बिना उसको कैंडल जलानी पड़ेगी, कुछ दिनों के बाद चेक करना पड़ेगा कि भाई मिंट प्लांट के कारण कुछ फर्क पड़ा क्या। ठीक है, तो रिमेंबर ही वुड नीड टू रीकिंडल, यानी फिर से जलाना पड़ेगा द कैंडल टू टेस्ट वेदर इट बर्न्स आफ्टर अ फ्यू डेज। हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन यू थिंक ऑफ टू लाइट द कैंडल विदाउट डिस्टर्बिंग द सेटअप? सोचो, बहुत सिंपल है। यूजिंग अ सिमिलर सेटअप एज द वन यूज्ड बाय प्रिस्ली but by placing it once in the dark and once in the sunlight, Jan Ingenhousz showed that sunlight is essential to the plant process that somehow purifies the air fouled by burning candles or breathing animals। मतलब क्या किया उसने, सेम प्रिस्ली का एक्सपेरिमेंट लिया, ठीक है, सेम वैसे ही किया, एक मिंट जार रखा, एक बर्निंग कैंडल रखा, सब वैसे ही किया। एक बार उस मिंट जार को, मतलब एक बार, सॉरी मिंट जार क्या बोल रहा हूँ, एक बार उस बेल जार को अंधेरे में रखा और एक सैंपल को उजाले में रखा। जिसमें उजाले में रखा उसमें वो कैंडल फिर से जल गई, किंडल हो गई, रिकिंडल हो गई 10 दिन बाद। लेकिन जिस बेल जार को अंधेरे में रखा था उसमें 10 दिन के बाद भी वो कैंडल नहीं जली, मतलब अंधेरे में फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। अब फोटोसिंथेसिस नहीं पता था उसको, लेकिन वही जो है कि जो भी प्यूरिफिकेशन का काम कर रहे हैं प्लांट्स, तो वो चीज़ अंधेरे में नहीं हुई, मतलब सनलाइट इज ऑल्सो नेसेसरी, ये उसने प्रूफ कर दिया। ठीक है, याद कैसे रखता हूँ मैं इसको, तो इंजन हाउस के नाम में इंजन है, इंजन, और इंजन के लिए हीट एनर्जी लगती है, बराबर है। तो सनलाइट भी एक टाइप की एनर्जी है, वो लाइट एनर्जी है। तो एनर्जी से मैं याद रखता हूँ कि सनलाइट का कंपल्शन, सनलाइट जरूरी है, ये किसने प्रूफ किया है, तो इंजन हाउस ने। इंजन से अपन ट्रेन का इंजन याद रख सकते हैं, कोई भी गाड़ी का इंजन याद रख सकते हैं। ठीक है, इंजन हाउस इज एन एलिगेंट एक्सपेरिमेंट विद एन aquatic plant showed that in bright sunlight small bubbles were formed around the green parts while in the dark they did not। ठीक है, aquatic plant लिए, aquatic plant को उसने देखा कि दिन के समय उजाले में उसमें से बबल्स निकलते हैं, तो क्योंकि वो ऑक्सीजन रिलीज करता है ना,
वेराज अंधेरे में वो रिलीज नहीं करते हैं। लेटर ही आइडेंटिफाइड दिस बबल्स टू बी ऑक्सीजन। अब 1774 में प्रिस्ली ने ऑक्सीजन डिस्कवर कर लिया था पहले ही, तो इंडियन हाउस को ऑक्सीजन पता था, तो उसको पता चला कि अरे ये जो बबल्स है ये ऑक्सीजन के हैं। तो ये भी प्रूव हो गया कि फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज होता है। समझ में आ रहा है कि तुमको एक एक साइंटिस्ट ने एक एक एक्सपेरिमेंट कर करके धीरे धीरे कैसे अपन ने जो पूरा चैप्टर पढ़ा है, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, पिगमेंट्स, क्लोरोफिल, दिस दैट, ये सब एक एक कितने सालों की मेहनत रहती है रिसर्च ने। एज अ स्पीशीज अगर बोलोगे तो एज अ ह्यूमन बीइंग तो अपन क्या एक हफ्ते में पढ़ लिए फोटोसिंथेसिस, अपने को लग गया अपन क्या नॉलेजेबल हो गए, अपनी कंसेप्ट क्लियर हो गई। पर एज अ स्पीशीज तुम देखोगे तो कैसा धीरे धीरे रिसर्च होते जाता है, एक एक चीज क्लियर होते जाती है। इसकी भी ब्यूटी वी मस्ट अप्रिशिएट। नेचर के साथ साथ साइंटिस्ट लोगों का दिमाग तो अपने को अप्रिशिएट करना ही चाहिए। एनीवेज, हेंस ही श्योर दैट इट इज ओनली द ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट्स दैट कुड रिलीज ऑक्सीजन। नेक्स्ट आएंगे 208 पे, पेज नंबर 208। इट वॉज नॉट अंटिल about 1854 that Julius von Sachs provided evidence for production of glucose when plants grow। ये मैं कैसे याद रखता हूँ? तो सैक्स से मैं सैकराइड याद रखता हूँ। सैकराइड मतलब शुगर, तो शुगर प्रेजेंट रहता है, ये जूलियस वॉन सैक्स ने डिस्कवर किया। क्या सिंपल है। ग्लूकोज इज यूजुअली स्टोर्ड एज स्टार्च। His later studies showed that green substance in plants, that is chlorophyll as we know it now, is located in special bodies later called chloroplasts within plant cells. He found that the green plants in parts in plants is where glucose is made and that the glucose is usually stored as starch। ठीक है, तो जूलियस वॉन सैक्स, तो सैकराइड से सैक अपन याद रख सकते हैं। तो सैकराइड मतलब शुगर, मोनोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, तो ग्लूकोज बनता है और वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। ये जूलियस वॉन सैक्स ने डिस्कवर किया है। नाउ कंसिडर द इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट डन बाय टी.डब्ल्यू. एंगलमैन। यूजिंग अ प्रिज्म ही स्प्लिट लाइट इनटू इट्स स्पेक्ट्रल कंपोनेंट्स। स्पेक्ट्रल कंपोनेंट्स मतलब व्हाइट लाइट को उसने विबग्योर में कन्वर्ट किया। एंड देन इल्यूमिनेटेड अ ग्रीन अलगा कॉल्ड एज क्लैडोफोरा। ये मैंने कोई तो भी वीडियो में बोला था, क्लैडोफोरा की ये कहानी मैंने कोई तो भी वीडियो में बताई थी। Placed in a suspension of aerobic bacteria. The bacteria were used to detect the sites of oxygen evolution। देखो ध्यान से मेरी बात सुनो। अब इतना तो अपने को पता चल गया है कि सनलाइट जरूरी है, CO2 जरूरी है और ऑक्सीजन रिलीज होता है, ये अपने को समझ गया है थैंक्स टू प्रिस्ली इंजन हाउस, थैंक्स टू प्रिस्ली एंड इंजन हाउस। ठीक है, आ रही है बात समझ में? तो एंगलमैन को इतना तो पता था कि ऑक्सीजन रिलीज होता है ना, क्योंकि इन एन एलिगेंट एक्सपेरिमेंट इंजन हाउस प्रूव्ड दैट ग्रीन aquatic plants released bubbles during light and that those bubbles were made up of oxygen। ये पहले ही हो चुका है। तो एंगलमैन को पता था कि फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन रिलीज होता है। तो उसने क्या किया, क्लैडोफोरा नाम का algae लिया। algae है मतलब aquatic है ऑब्वियसली, और उसकी सराउंडिंग में एरोबिक बैक्टीरिया रखे, ऑब्लिगेट एरोब्स। ठीक है, तो जब वो ऑक्सीजन रिलीज करेंगे तभी सिर्फ एरोबिक बैक्टीरिया ग्रो हो पाएंगे, जब अलगी ऑक्सीजन रिलीज करेगा तब। बराबर है ना, दोनों को साथ में रखा। द बैक्टीरिया वर यूज्ड टू डिटेक्ट द साइट्स ऑफ ऑक्सीजन इवोल्यूशन। ही ऑब्जर्व्ड दैट द बैक्टीरिया अक्यूमुलेटेड मेनली इन द रीजन ऑफ ब्लू एंड रेड लाइट ऑफ द स्प्लिट स्पेक्ट्रम। उसने प्रिज्म के थ्रू विबग्योर में स्प्लिट किया व्हाइट लाइट को। ये बताया था मैंने, मेरे को याद आ रहा है कोई तो भी वीडियो में मैंने बोला था। ये जब मैंने ये सब पढ़ाया था ब्लू और रेड लाइट वाला, तभी शायद मैंने बताया था उसी वीडियो में कि एक पेट्री प्लेट को सिर्फ वायलेट लाइट दिया, एक पेट्री प्लेट को ब्लू दिया, एक पेट्री प्लेट को ग्रीन दिया, एक पेट्री प्लेट को येलो दिया। तो एरोबिक बैक्टीरिया सिर्फ उन पेट्री प्लेट्स में ग्रो हुए, क्लैडोफोरा वाले पेट्री प्लेट्स में, जिनको अपन ने ब्लू और रेड लाइट दिया था। ठीक है, इसका मतलब ऑक्सीजन सिर्फ तब रिलीज हुआ जब उसको ब्लू या रेड लाइट मिला। ठीक है, a first action spectrum of photosynthesis was thus described। It resembles roughly the absorption spectra of chlorophyll A and B which is discussed in section 13.4। आएगा आगे आएगा। absorption spectra क्या है मैंने तुमको बताया था, absorption maximum। By the middle of the 19th century, the key features of plant photosynthesis were known।
namely that plants could use light energy to make carbohydrate from CO2 and water. The empirical equation, empirical मतलब जो बैलेंस नहीं है, जनरल है, उसको empirical formula, empirical equation ऐसा बोलते हैं, जेनरिक. The empirical equation representing the total process of photosynthesis for oxygen evolving organisms was then understood as CO2 plus H2O in presence of light gives us CH2O. CH2O मतलब जितने कार्बन उतने ही H2O, मतलब कार्बोहाइड्रेट प्लस O2. ठीक है, बैलेंस नहीं है, वो एम्पिरिकल इक्वेशन है. Where CH2O represented a carbohydrate, example glucose, a 6 carbon sugar. A milestone contribution to the understanding of photosynthesis was that made by a microbiologist Cornelius Van Niel, who, based on his studies of purple and green bacteria, demonstrated that photosynthesis is essentially a light-dependent reaction in which hydrogen from a suitable oxidizable compound reduces carbon dioxide to carbohydrates. This can be expressed as 2H2A plus CO2 in the presence of light gives us 2A plus CH2O plus H2O. ध्यान से मेरी बात सुनेंगे. ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड मतलब ऐसा कंपाउंड जो ऑक्सीडाइज हो सकता है, जिसको ऑक्सीडाइज किया जा सकता है. ऑक्सीडाइज करना मतलब क्या? तो एक तो ऑक्सीजन देना या हाइड्रोजन निकालना. तो ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड मतलब हाइड्रोजन को अपन रिमूव कर रहे हैं. हाइड्रोजन को अपन कहाँ से रिमूव करते हैं? तो हाइड्रोजन को अपन रिमूव करते हैं NADPH2 से. तो ये जो ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड की बात कर रहा है वो ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड है NADPH2. ठीक है, ए जो है वो NADPH2 है. तो 2H2A मतलब 2 NADPH2 plus CO2 in the presence of light gives us 2A मतलब 2 NADP plus ग्लूकोज plus H2. ऐसा है वो. अब तक NADP डिस्कवर नहीं हुआ था. ठीक है, समझ में आ रहा है? NADP को डॉक्टर आर्नन ने डिस्कवर किया है. लिख लेंगे कॉपी में, ARNON, डॉक्टर एर्नन. डॉक्टर एर्नन ने बाद में डिस्कवर किया कि वैन नील जो ऑक्सीडाइजेबल चीज की बात कर रहा है, कंपाउंड की बात कर रहा है, वो है NADP. ठीक है, अब ध्यान से सुनेंगे. अगला पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लो. डॉक्टर एर्नन लिखना हो गया होगा तो रख दो पेन और ध्यान से एकदम मेरी बात सुनो. अदरवाइज पॉज कर लो वीडियो, पहले डॉक्टर एर्नन लिख लो. डिस्कवर्ड NADPH2 या NCERT में ही लिख लिया तो भी चलेगा. और अब ध्यान से मेरी बात सुनो, वो पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है. देखो अपने NCERT में सब लोग. इन ग्रीन प्लांट्स H2O इज द हाइड्रोजन डोनर एंड इज ऑक्सीडाइज्ड टू O2. बराबर, ये अपन ने देखा हुआ है फोटोसिंथेसिस चैप्टर में. सम ऑर्गेनिजम्स डू नॉट रिलीज ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. ध्यान से मेरी बात सुनो. अपन बचपन से क्या पढ़ते आ रहे हैं कि प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, है ना. जेड स्कीम पढ़ाने के बाद मैंने ये तुमको साइंटिफिकली प्रूफ कर दिया था कि यूर लाइफ इज अ लाई. ऐसा नहीं होता है. ऑक्सीजन जो है वो H2O से रिलीज होता है, ये मैंने तुमको बताया था. बराबर है. पर ये चीज ह्यूमन बींग्स को, साइंटिस्ट लोगों को कैसे पता चली? मैं तो किताबें पढ़ के बताया तुमको, लेनिंजर पढ़ के बताया, लेकिन साइंटिस्ट लोगों को कैसे पता चला? ध्यान से मेरी बात सुनेंगे. क्या बोल रहा है NCERT वाला कि इन ग्रीन प्लांट्स H2O इज द हाइड्रोजन डोनर एंड इज ऑक्सीडाइज टू O2. है ना. अपने को H2O में ऑक्सीजन से कोई मतलब नहीं है. ऑक्सीजन तो रिलीज हो जाता है ग्रीन प्लांट्स में, और हाइड्रोजन जो है वो NADP के पास चले जाता है. बराबर है ना. सम ऑर्गेनिजम्स डू नॉट रिलीज O2 ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. व्हेन H2S बोले तो हाइड्रोजन सल्फाइड instead is the hydrogen donor for purple and green sulfur bacteria. The oxidation product is sulfur or sulfate depending on the organism. एक तो प्योर सल्फर रहेगा या फिर सल्फेट रहेगा, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो तो डिपेंडिंग ऑन द ऑर्गेनिज्म है. बट इंपॉर्टेंट है कि ऑक्सीजन नहीं रिलीज होता है. इसका मतलब सल्फर रिलीज होता है, इसका मतलब CO2 तो उसको भी मिल रहा है, बस H2O की जगह उसको H2S मिल रहा है, तो वो ऑक्सीजन की जगह सल्फर रिलीज कर रहा है. इसका मतलब ग्रीन प्लांट्स में जो ऑक्सीजन रिलीज होता होगा वो भी CO2 से रिलीज नहीं होता होगा, H2O से रिलीज होता होगा. ऐसा पॉसिबल है कि नहीं? है ना. तो सबसे पहले ये हाइपोथेसिस कॉर्नेलियस वैन नील ने ही बनाया है.
कि जो ऑक्सीजन रिलीज होता है वो CO2 से ना होते हुए H2O से होता होगा। किस किस बेसिस पे बनाया है हाइपोथेसिस उसने? सल्फर बैक्टीरिया के ऊपर। ठीक है, हेंस ही इन्फर्ड, उसने इन्फरेंस निकाला दैट द ऑक्सीजन इवॉल्व्ड बाय द ग्रीन प्लांट comes from H2O, not from carbon dioxide. This was later proved by using radioisotopic techniques. है ना, रेडियो आइसोटोपिक टेक्निक्स में क्या किया, अब फिर से लिख लेंगे, फिर से लिखेंगे। रूबेन एंड कैमेन नाम के दो साइंटिस्ट थे, RUBEN, रूबेन एंड कैमेन, KAMEN, कैमेन, रूबेन और कैमेन नाम के दो साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या किया, H2O का जो ऑक्सीजन था वो रेडियो एक्टिव बना दिया और प्लांट्स को H2O दे दिया। ठीक है, अब जो ऑक्सीजन रिलीज हो रहा था वो भी रेडियो एक्टिव था। तो दिस वाज डायरेक्ट एविडेंस कि ऑक्सीजन जो रिलीज हो रहा है वो CO2 से रिलीज नहीं हो रहा है, वो H2O से रिलीज हो रहा है। ठीक है, तो वही उसके बारे में, रूबेन एंड कैमेन के बारे में लिखा है एनसीईआरटी ने कि दिस वाज लेटर प्रूव्ड बाय यूजिंग रेडियो आइसोटोपिक टेक्निक्स। The correct equation that would represent the overall process of photosynthesis is therefore 6CO2 plus 12H2O in the presence of light gives the C6H12O6 plus 6H2O plus 6O2। इसका एक्सप्लेनेशन मैंने तुमको दिया हुआ है कि अपन सब्सट्रैक्टिंग 6H2O फ्रॉम बोथ साइड्स कर सकते हैं, लेकिन अपन वैसा क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि फिर ऐसा मतलब निकलता है कि कुछ ऑक्सीजन H2O से और कुछ ऑक्सीजन CO2 से निकल रहे हैं, ऐसा कंक्लूजन निकलता है। इसलिए अपन लेफ्ट साइड में 12H2O और राइट साइड में 6H2O एज इट इज लिखते हैं। क्यों लिखते हैं समझ में आ रहा है ना, क्योंकि अपन वो कंक्लूजन निकलवाना नहीं चाहते। अपन चाहते कि 6O2 यानी 12 ऑक्सीजन एटम्स है वो पूरे के पूरे 12 H2O से आ रहे हैं, ये समझ में आए अपने को, इसलिए करेक्टेड इक्वेशन है। इसके ऊपर पेपर में क्वेश्चन भी था। Where C6H12O6 represents glucose. The oxygen released is from water. This was proved using radioisotope techniques. Note that this is not a single reaction but description of a multi-step process called photosynthesis. Can you explain why 12 molecules of water as substrate are used in the equation given above? Yes, बिल्कुल, अब भी जो मैंने बोला, ताकि ऑक्सीजन जो है राइट साइड में वो पूरा का पूरा H2O से निकल रहा है, एक भी ऑक्सीजन का आइटम CO2 से नहीं निकल रहा है, ये अपने को समझना चाहिए इसलिए। अदरवाइज पांचवी में जो अपन पढ़ते हैं वो अपन 6CO2 प्लस 6H2O गिव्स अस C6H12O6 प्लस 6O2 ऐसा पढ़ते हैं पांचवी में, जब पहली बार पढ़ते हैं तब अपन राइट साइड में H2O नहीं लिखते हैं। अभी अपन क्यों लिख रहे हैं, ये कंसेप्ट अपने को क्लियर रहनी चाहिए। नहीं समझ में आ रहा होगा तो मेरे को मैसेज करना, नहीं याद आ रहा होगा तो, ठीक है, ओके। तो ये है पेज नंबर 209, वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस, ये वाला तुम लोग पढ़ लो, क्लोरोप्लास्ट का वगैरह डिस्क्रिप्शन है, ये नहीं पढ़ते हैं अपन। ठीक है, इसको स्किप करता हूँ मैं, इसमें कुछ ज़्यादा खास चीज़ दी हुई नहीं है, ये सब सेल बायोलॉजी में पढ़ाई है अपन ने। आ जाओ पेज नंबर 210 पे, 210, सब लोग आ जाएंगे पेज नंबर 210 पे, पेज नंबर 210। हाउ मेनी पिगमेंट्स आर इन्वॉल्व्ड इन फोटोसिंथेसिस, अब ध्यान से एकदम अलर्ट रहेंगे सब लोग। Looking at plants, have you ever wondered why and how there are so many shades of green in their leaves, even in the same plant? जंगल में खड़े रहना जहां पर बहुत सारे पेड़ पौधे और उनको देखना, अलग 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 प्रकार के ग्रीन कलर दिखते हैं। ठीक है, एक ही शेड नहीं रहता है। We can look for an answer to this question by trying to separate the leaf pigments of any green plant through paper chromatography. ठीक है, क्रोमेटोग्राफी में क्या रहता है, पिगमेंट्स को सेपरेट करने की एक तरीका रहता है, एक पेपर रहता है वॉटमैन फिल्टर पेपर करके, स्पेशल पेपर रहता है वो, उसके ऊपर किसी भी सेल को क्रश करके उसका सोल्यूशन वो पेपर पे अप्लाई करने का। तो ग्रेविटी के कारण वो ड्रॉप्स उसके नीचे नीचे उतरते हैं और पेपर के ऊपर जो चार्जेस रहते हैं उसके कारण अलग अलग पिगमेंट्स अलग अलग लेवल पे रुक जाते हैं। 12th वालों को समझेगा, 12th वालों जैसा इलेक्ट्रोफोरेसिस रहता है ना, बस ये पेपर क्रोमेटोग्राफी भी वैसी ही टेक्निक है। ठीक है, वॉटमैन पे फिल्टर पेपर मिल गया तो अपन अपने इंस्टीट्यूट में भी कर सकते हैं, बहुत सिंपल टेक्निक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो उससे अपन सेपरेट कर सकते हैं उसके अलग अलग पिगमेंट्स, ये वो बोल रहा है।
A chromatographic separation of the leaf pigments shows that the color that we see in leaves is not due to a single pigment but due to 4 pigments. ठीक है, कौन से तो क्लोरोफिल ए विच इज ब्राइट और ब्लू ग्रीन इन द क्रोमेटोग्राम. क्रोमेटोग्राम मतलब वो पेपर क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक करने के बाद वो जो कागज रहता है जिसमें अपने को अलग अलग पिगमेंट्स दिखते हैं, तो उस कागज को क्रोमेटोग्राम बोलते हैं. तो ब्राइट और ब्लू ग्रीन दिखता है, ब्राइट ग्रीन या ब्लू ग्रीन, इसको अंडरलाइन कर लेंगे. क्लोरोफिल बी येलोइश ग्रीन दिखता है, हल्का सा येलो ग्रीन. ज़ैंथोफिल्स पूरे येलो दिखते हैं एंड कैरोटिनॉइड्स येलो टू येलो ऑरेंज दिखते हैं. लेट अस नाउ सी व्हाट रोल्स वेरियस पिगमेंट्स प्ले इन फोटोसिंथेसिस. अब ये पिगमेंट्स करते क्या है भाई, तो लेट अस सी. Pigments are substances that have an ability to absorb light at specific wavelengths. Can you guess which is the most abundant plant pigment in the world? ये अपन ने 11th में प्लांट किंगडम में पढ़ा रहता है. आंसर है क्लोरोफिल ए. Let us study the graph showing the ability of chlorophyll A pigment to absorb lights of different wavelengths. Of course, you are familiar with the wavelengths of the visible spectrum of light as well as the Vibgyor. From figure 13.3a, 13.3a मतलब सबसे ऊपर वाली फिगर है. अब तुम लोग डिस्क्रिप्शन छोड़ो, तुम लोग सिर्फ फिगर देखो, रीडिंग मैं कर रहा हूँ साथ में. तुम लोग अपने एनसीईआरटी में सिर्फ फिगर देखो, मैं रीडिंग कर रहा हूँ. ठीक है, किस चीज का ग्राफ है वो है ग्राफ शोइंग द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए, बी एंड कैरोटिनॉइड्स. ठीक है, समझ में आ रहा है. तो एक्स एक्सिस पे अपन ने वेवलेंथ प्लॉट की है और वाई एक्सिस पे अपन ने कितना एब्जॉर्प्शन हुआ है वो प्लॉट किया है. ठीक है, तो फिगर 13.3a में अपने को क्या दिख रहा है. एनसीईआरटी बोल रही है कि फ्रॉम फिगर 13.3a कैन यू डिटरमाइन द वेवलेंथ एट विच क्लोरोफिल ए शोज द मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन. देख लो क्लोरोफिल ए को, तो क्लोरोफिल ए मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन शो कर रहा है ब्लू वाले रीजन में. ग्रीन वाला क्लोरोफिल ए है ना, ब्लू वाले रीजन में वो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन शो कर रहा है. रेड वाले रीजन में थोड़ा कंपैरेटिवली कम कर रहा है, मतलब थोड़ा नहीं काफी कम कर रहा है. ठीक है. Does it show another absorption peak at any other wavelengths too? If yes, which one? तो yes, वो एक और जगह पर अपने को पीक दिखा रहा है, दैट इज रेड वाले रीजन में. ठीक है, विबग्योर का जो ब्लू रीजन है उसमें तो क्लोरोफिल ए मैक्सिमम पीक दिखा रहा है, रेड वाले रीजन में भी थोड़ी छोटी पीक दिखा रहा है लेकिन पीक दिखा रहा है. बाकी ग्रीन, येलो, ऑरेंज में तो पूरा ऑलमोस्ट उसका एब्जॉर्प्शन फ्लैट है. अरे यार, ये मेरे एनसीईआरटी ने ग्रीन वाले को ही क्लोरोफिल ए मार्क किया है और ग्रीन वाले को ही क्लोरोफिल बी मार्क किया है. ये तो गड़बड़ वाली चीज हो गई. नहीं, एक सेकंड, ये गलत है. क्लोरोफिल ए वाला ब्लू है और क्लोरोफिल बी वाला ग्रीन है. ठीक है, क्योंकि ये इधर कलर्स दिए है ना डिस्क्रिप्शन में कि क्लोरोफिल ए इज ब्राइट और ब्लू ग्रीन, क्लोरोफिल बी इज येलो, येलो ग्रीन. नहीं, उसके कारण नहीं है वैसे वो, लेकिन ब्लू वाला जो है ना वो क्लोरोफिल ए है. पता नहीं तुम्हारे एनसीईआरटी में करेक्ट किया है क्या एनसीईआरटी ने. ब्लू वाला क्लोरोफिल ए है, ग्रीन वाला क्लोरोफिल बी है और येलो वाला कैरोटिनॉइड्स है. ठीक है, तो कैरोटिनॉइड्स को अगर तुम देखोगे तो वो तो प्योरली ब्लू कलर ही एब्जॉर्ब कर रहा है, वो तो रेड कलर की तरफ कोई भी पीक शो नहीं कर रहा है. उसका तो मेन एब्जॉर्प्शन ब्लू कलर में ही है, मतलब वायलेट ब्लू वाले रीजन में ही उसका मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन है. ठीक है, नाउ लुक एट फिगर 13.3b. अब सेकंड फिगर पे आ जाओ. अगेन एनसीईआरटी के रीडिंग की तरफ ध्यान मत दो, वो मैं कर रहा हूं, तुम लोग बस फिगर देखो. वो क्या है, ग्राफ शोइंग एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस. मैंने तुमको उसके बारे में बताया था ना, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के बारे में, जिससे अपन एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा कैलकुलेट करते हैं. तो ये एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा कैलकुलेट किया गया है. या ऑक्सीजन सबसे ज्यादा कब कौन से वेवलेंथ पे रिलीज हुआ है, हाँ ये कैलकुलेट किया है कि ऑक्सीजन सबसे ज्यादा कौन से वेवलेंथ पे रिलीज हुआ है 13.3b में. नाउ लुक एट फिगर 13.3b शोइंग द वेवलेंथ्स एट विच मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस अकर्स इन अ प्लांट. मतलब मैक्सिमम ऑक्सीजन कौन से वेवलेंथ पे रिलीज होता है, वही क्लैडोफोरा वाला एग्जांपल. ठीक है, किसने किया था क्लैडोफोरा वाला एक्सपेरिमेंट, एंगलमैन ने. वो कैसे याद रखा है मैंने, तो उसने प्रिज्म के थ्रू विबग्योर में स्प्लिट किया व्हाइट लाइट को. प्रिज्म में क्या रहते हैं, प्रिज्म में एंगल्स रहते हैं.
तो प्रिज्म वाला एक्सपेरिमेंट एंगलमैन ने किया। ठीक है, इंजन हाउस लाइट, जूलियस वॉन सैक्स ग्लूकोज और एंगलमैन का प्रिज्म वाला, याद रखना बहुत इजी है। ठीक है, तो ये वो वाला ग्राफ है। Can you see that the wavelengths at which there is maximum absorption by chlorophyll A, that is in the blue and the red regions, also shows higher rate of photosynthesis? है ना? Hence we can conclude that chlorophyll A is the chief pigment associated with photosynthesis. But by looking at figure 13.3c, अब तीसरे फिगर पे आ जाओ। Can you say that there is a complete one-to-one overlap between the absorption spectrum of chlorophyll A and the action spectrum of photosynthesis? 13.3c में क्या किया है, ए और बी वाले ग्राफ को ओवरलैप कर लिया है। तो कंप्लीटली 100% ओवरलैप हो रहा है क्या, बताओ? तो कंप्लीटली 100% ओवरलैप नहीं हो रहे हैं, वो कंप्लीटली 100% ओवरलैप नहीं हो रहे हैं, है ना? वी कैन सी दैट कंप्लीट ओवरलैप नहीं है। क्लोरोफिल ए भले ही चीफ पिगमेंट होगा, लेकिन बाकी जो क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड्स है उनका भी फोटोसिंथेसिस में रोल है, ये अपने को क्लियरली दिख रहा है। ठीक है, बट एनीवेज अपने को ये समझ में आ गया कि फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस बेस्ट इन ब्लू एंड रेड लाइट। ठीक है, तो आ जाओ पेज नंबर 211 पे, आएंगे पेज नंबर 211 पे। These graphs, however, show that most of the photosynthesis takes place in the blue and red regions of the spectrum. Some photosynthesis does take place at the other wavelengths of the visible spectrum. Let us see how this happens. Though chlorophyll is the major pigment, responsible for trapping light, other thylakoid pigments like chlorophyll B, xanthophylls and carotenoids, which are called accessory pigments, also absorb light and transfer the energy to chlorophyll A. Indeed, they not only enable a wider range of wavelength of incoming light to be utilized for photosynthesis, but also protect chlorophyll A from photooxidation. इस फोटोऑक्सीडेशन को मैं क्या बोलता हूँ, सोलराइजेशन। ठीक है, पता है अपने को कि वो काम भी करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे 13.5, व्हाट इज लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शंस और द फोटोकेमिकल फेज इंक्लूड लाइट एब्जॉर्प्शन, वाटर स्प्लिटिंग, ऑक्सीजन रिलीज एंड द फॉर्मेशन ऑफ हाई एनर्जी केमिकल इंटरमीडिएट्स, दैट इज ATP एंड NADPH. Several complexes are involved in the process. The pigments are organized into two discrete photochemical light harvesting complexes, that is called as LHC, within the photosystem 1 and photosystem 2. Photosystem 1 and photosystem 2 ये जो है, these are named in the sequence of their discovery and not in the sequence in which they function during the light reaction. The LHC are made up of hundreds of pigment molecules bound to proteins. Each photosystem has all the pigments except one molecule of chlorophyll A, forming a light harvesting system also called antenna complex या antenna. बहुत सिंपल है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस उन्होंने थोड़ा सा ग्रामर यूज़ किया, इंग्लिश ग्रामर। तुमको इंग्लिश नहीं आती इसलिए तुमको लग रहा है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, एकदम सिंपल चीज़ है। क्या रहता है फोटोसिस्टम 1 में, तो रिएक्शन सेंटर रहता है और लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स रहता है। देख लो अपने नोट्स में मैंने यही लिखाया है कि नहीं। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज एंटीना कॉम्प्लेक्स। तो वो वही तो चीज़ बोल रहा है NCERT भी। क्या बोल रहा है, ईच फोटोसिस्टम हैज ऑल द पिगमेंट्स एक्सेप्ट वन मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए। एक क्लोरोफिल ए के एक मॉलिक्यूल को, एक ही मॉलिक्यूल है क्लोरोफिल ए का, उसको हटा दो ना, उसको छोड़ के बाकी जितनी भी चीज़ें हैं एक्सेप्ट क्लोरोफिल ए, उनको अपन क्या बोलते हैं, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स या एंटीना कॉम्प्लेक्स। बस उसमें क्लोरोफिल ए अगर ऐड कर दोगे तो उसको फोटोसिस्टम बोल दोगे, फंक्शनल फोटोसिस्टम, सिंपल। ठीक है, these pigments help to make photosynthesis more efficient by absorbing different wavelengths of light. The single chlorophyll A molecule forms the reaction center. एक ही molecule रहता है chlorophyll A का, and it is called as the reaction center in one photosystem.
The reaction center is different in both the photosystems. In PS1, the reaction center chlorophyll A has an absorption peak at 700 nanometer. Hence, it is called P700. While in PS2, it has absorption maxima at 680 nanometer and is called P680. पता है अपने को, ये चीज कोई बड़ी बात नहीं है. ठीक है. फिर 13.6 द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट. In photosystem 2, the reaction center chlorophyll A absorbs 680 nanometer wavelength of red light, causing electrons to become excited and jump into an orbit farther from the atomic nucleus. These electrons are picked up by an electron acceptor which passes them to an इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर सिस्टम. पेज नंबर 212 पे आ जाएंगे. अब मैंने तो तुमको पूरा सीक्वेंस बताया, फियोफाइटिन, प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम F, प्लास्टोसाइनिन. एनसीईआरटी ने कुछ भी नहीं दिया है, सीधा बोला है कि एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है भाई, कंसिस्टिंग ऑफ साइटोक्रोम्स. वो कौन से साइटोक्रोम्स है, क्या है, एनसीईआरटी ने कुछ भी डिटेलिंग नहीं दी है. This movement of electrons is downhill in terms of an oxidation reduction और redox potential scale. ये भी मैंने तुमको पढ़ाते वक्त बताया था कि अपन Z स्कीम जब बनाते हैं तो उसका ये मतलब नहीं है कि ऐसा फियोफाइटिन रहता है, फिर फियोफाइटिन के नीचे PQ रहता है, फिर उसके नीचे साइटोक्रोम B6 रहता है. ऐसा उसका मीनिंग नहीं है. वो तो साइड बाय साइड रहते हैं थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन में. अपन उसको Z के फॉर्म में क्यों बनाते हैं, क्योंकि अपने को रिड्यूसिंग रिडॉक्स पोटेंशियल के हिसाब से शो करना है, इसलिए. ये मैंने पढ़ाते वक्त भी बताया था, यही चीज एनसीईआरटी भी बोल रही है. ठीक है. द इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट यूज्ड अप एज दे पास थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बट आर पास्ड ऑन टू द पिगमेंट्स ऑफ फोटोसिस्टम 1. Simultaneously, electrons in the reaction center of PS1 are also excited when they receive red light of wavelength 700 nanometer and are transferred to another acceptor molecule that has a greater redox potential. बराबर है ना, सही है ना. ग्राउंड स्टेट पे जो PS1 है उसके कंपैरिजन में तो FRS का रिडॉक्स पोटेंशियल ज्यादा ही है ना. उसको जब 700 नैनोमीटर का लाइट मिलता है, PS1 एक्साइट होता है, तो वो जो एक्साइटेड वाला PS1 है उसके कंपैरिजन में FRS का रिडॉक्स पोटेंशियल कम है, एडमिटेबल. लेकिन ओरिजिनल जो PS1 है ग्राउंड स्टेट वाला, उसके हिसाब से तो ज्यादा ही है ना. बराबर है ना. तो इसलिए एनसीईआरटी क्या बोल रही है, ट्रांसफर टू अनदर एक्सेप्टर मॉलिक्यूल दैट हैज अ ग्रेटर रिडॉक्स पोटेंशियल. फिजिक्स को अपन गलत नहीं प्रूव कर रहे, बिल्कुल गलत नहीं है फिजिक्स. रिडॉक्स पोटेंशियल तो हायर टू लोअर ही पास होगा वो इलेक्ट्रॉन, लेकिन ग्राउंड स्टेट वाला जो PS1 है उसके कंपैरिजन में वो ग्रेटर रिडॉक्स पोटेंशियल है उसका, ऐसा बोल रहा है. ठीक है. These electrons then are moved downhill again, this time to a molecule of energy-rich NADP. The addition of these electrons reduces NADP to NADPH2. This whole scheme of transfer of electrons starting from PS2 uphill to the acceptor, starting from PS2 uphill to the acceptor, uphill है ना, पहले PS2 को एक्साइट होना पड़ेगा ना, अपहिल जाना पड़ेगा ना, तभी वो फियोफाइटिन को दे पाएगा. ठीक है. इसलिए अपहिल टू द एक्सेप्टर, देन डाउन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन टू PS1, देन एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ट्रांसफर टू अनदर एक्सेप्टर एंड फाइनली डाउनहिल टू NADP, causing it to be reduced to NADPH2 is called the Z scheme. Due to its characteristic shape, this shape is formed when all the carriers are placed in a sequence on a redox potential scale. ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, वो रियलिटी में थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन में ऐसे Z के शेप में अरेंज्ड नहीं होते हैं. दैट इज रॉन्ग. ठीक है. इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग रिडॉक्स पोटेंशियल के हिसाब से अगर अरेंज करोगे तो वो वैसा दिखता है. ठीक है. फिर आते हैं स्प्लिटिंग ऑफ वाटर पे. यू वुड देन आस्क हाउ डज PS2 सप्लाई इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूअसली. द इलेक्ट्रॉन्स दैट वर मूव फ्रॉम फोटोसिस्टम 2 मस्ट बी रिप्लेस्ड.
This is achieved by electrons available due to splitting of water. The splitting of water is associated with the PS2. Water is split into H plus O and electrons. इसके ऊपर मैं पहले ही भाषण दे चुका हूँ कि साइंटिफिकली स्पीकिंग H2O splits into H प्लस और OH माइनस, लेकिन एनसीईआरटी ने वाटर को तोड़ा है 2H और O में, ये मैंने पहले ही बताया है, तो चिंता करने की बात नहीं है। ठीक है, 2H एंड O, तो 2H मतलब 2 प्रोटॉन्स एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो एनसीईआरटी बोल रही है कि वाटर इज स्प्लिट इनटू H प्लस मतलब प्रोटॉन्स, O एंड इलेक्ट्रॉन्स। This creates oxygen, one of the net products of photosynthesis. The electrons needed to replace those removed from photosystem 1 are provided by photosystem 2. ठीक है, तो 2H2O स्प्लिट होगा इंटू 4H प्लस, देखो 2H2O लिया है ना, तो वो स्प्लिट होगा इंटू 4H प्लस O2। तो 4H मतलब 4 प्रोटॉन्स और 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो बस वही लिखा है एनसीईआरटी ने, 4 प्रोटॉन्स प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स प्लस O2। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स जो है ये PS2 के पास चले जाएंगे और प्रोटॉन्स कहाँ पर जाएंगे, थाइलाकॉइड के ल्यूमेन में, और फिर थाइलाकॉइड के ल्यूमेन से स्ट्रोमा में कैसे आएंगे, तो एटीपी सिंथेस एंजाइम के थ्रू। सिंपल है एकदम। We need to emphasize here that the water splitting complex is associated with the PS2, which itself is physically located on the inner side of the membrane of the thylakoid. Then where are the protons and O2 form likely to be released? In the lumen or on the outer side of the membrane? ज़्यादा नौटंकी मत कर एनसीईआरटी, सबको पता है कि वो प्रोटॉन्स कहाँ पर जाएंगे, ल्यूमेन में जाएंगे। द प्रोटॉन्स विल एंटर द ल्यूमेन। ठीक है, एकदम सिंपल कंसेप्ट है यहाँ तक, कुछ भी आई डोंट थिंक ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम है, मेरे हिसाब से तो भी सिंपल है। ठीक है, अपन ने ये सब पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो एनीवेज बढ़ते हैं अपन अभी आगे। साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। Living organisms have the capability of extracting energy from oxidizable substances and store this in the form of bond energy. Special substances like ATP carry this energy in their chemical bonds. The process अरे कहाँ गया, हाँ, द प्रोसेस ऑफ विच, पेज नंबर 213 पे आएंगे, पेज नंबर 213 पे आएंगे। द प्रोसेस ऑफ विच एटीपी इज सिंथेसाइज्ड बाय सेल्स, दैट इज इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट्स, इज नेम्ड फॉस्फोराइलेशन। Photophosphorylation is the synthesis of ATP from ADP and inorganic phosphate in the presence of light. When the two photosystems work in a series, first PS2 and then PS1, a process called non-cyclic photophosphorylation occurs. The two photosystems are connected through an electron transport chain as seen earlier in the Z scheme. Both ATP and NADPH2 are synthesized by this kind of electron flow. When only PS1 is functional, the electron is circulated within the photosystem and the photophosphorylation occurs due to cyclic flow of electrons. A possible location where this could be happening is in the stroma lamellae. ठीक है, stroma lamellae. While the membrane or lamellae of the grana have both PS1 and PS2, the stroma lamellae membranes lack PS2 as well as NADP reductase enzyme. इसको अंडरलाइन करेंगे, इसको अंडरलाइन करेंगे। देखो, ग्रैनम जो होता है, थाइलाकॉइड एक दूसरे के ऊपर अगर अरेंज होके ग्रैनम बनाएंगे, थाइलाकॉइड अगर एक दूसरे के ऊपर अरेंज होके ग्रैनम बनाएंगे, तो वो जो ग्रैना है उसमें PS1 और PS2 दोनों रहते हैं। ठीक है, लेकिन दो ग्रैना को कनेक्ट करने वाला जो स्ट्रोमा लैमेले रहता है, जिसको मैंने सेल बायोलॉजी में फ्रेट चैनल्स ये नाम भी बताया था, उसमें सिर्फ PS1 रहता है, उसमें सिर्फ PS1 रहता है।
उसको नॉन एप्रेस्ड मेम्ब्रेन बोलते हैं। NON नॉन, अप्रेस्ड मतलब APPRESSED एप्रेस्ड, नॉन एप्रेस्ड मेम्ब्रेन। वेयर एज थाइलाकॉइड का वो रीजन जो एक दूसरे के ऊपर अरेंज होकर ग्रेनम बनाता है उसको बोलते हैं एप्रेस्ड रीजन। ठीक है, तो एप्रेस्ड रीजन में अपने को PS1 PS2 दोनों मिलेंगे, नॉन एप्रेस्ड रीजन में अपने को सिर्फ PS1 मिलेगा। ठीक है, एकदम सिंपल है ये। तो आगे बढ़ते हैं। द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन डज नॉट पास ऑन टू NADP बट इज साइकल्ड बैक टू द PS1 कॉम्प्लेक्स थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। The cyclic flow hence results only in the synthesis of ATP but not of NADPH2. Cyclic photophosphorylation also occurs when only light of wavelengths beyond 680 nanometer are available for excitation. ठीक है, और भी रीजन अपन ने डिस्कस किए थे। NADP टेस्ट खराब हो गया होगा, पानी नहीं होगा, या सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो रेशियो NADPH2 और ATP का है ना। ठीक है, एनीवेज मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस 13.6.3। लेट अस नाउ ट्राई एंड अंडरस्टैंड हाउ एक्चुअली, एक सेकंड ना, बिफोर दिस टॉपिक वीडियो पॉज करेंगे और क्या करेंगे, जो नोट्स मैंने तुमको लिखाए हैं वो जेड स्कीम के, वो नोट्स अपनी आंखों के सामने खोल के रख लेंगे। तो वीडियो पॉज करो, नोट्स खोलो और फिर वीडियो चालू करो। लेट अस नाउ ट्राई एंड अंडरस्टैंड हाउ एक्चुअली ATP इज सिंथेसाइज्ड इन द क्लोरोप्लास्ट। NCERT भी खोल के रखना है और नोट्स भी खोल के रखना है, दोनों चीजें चाहिए। द केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस हैज बीन पुट फॉरवर्ड टू एक्सप्लेन द मैकेनिज्म। लाइक इन रेस्पिरेशन, in photosynthesis too, ATP synthesis is linked to development of a proton gradient across a membrane. This time these are membranes of the thylakoid. These are membranes of the thylakoid. Respiration में क्या था, inner membrane था, अभी क्या है, membrane of thylakoid है। There is one difference though. Here the proton accumulation is towards the inside of the membrane, that is in the lumen. Mitochondria में कहाँ पर था, मेम्ब्रेन के बाहर इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में था। उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, अपने को प्रोटॉन ग्रेडियंट से मतलब है ना। इन रेस्पिरेशन प्रोटॉन्स अक्यूमुलेट इन द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया व्हेन इलेक्ट्रॉन्स मूव थ्रू द ETS. Let us understand what causes the proton gradient across the membrane. We need to consider again the processes that take place during the activation of electrons and their transport to determine the steps that cause a proton gradient to develop. ठीक है, अब ध्यान से सुनेंगे। NCERT एज वेल एज नोट्स जेड स्कीम के दोनों अपनी आंखों के सामने रखेंगे और अब ध्यान से एकदम अलर्ट होके मुंह पे पानी वानी मार के आना होगा। तो आ जाओ, वीडियो पॉज करो, मुंह पे पानी मार लो, पानी पी लो, पर पूरा ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन NCERT ने डिफिकल्ट बनाया है तो मेरा प्रेजेंस जरूरी है। तुम खुद से पढ़ोगे तो नहीं समझेगा, इसलिए ध्यान से सुनो क्या हो रहा है। पहला पॉइंट, सिंस स्प्लिटिंग ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस ऑन द इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, the protons or hydrogen ions that are produced by the splitting of water accumulate within the lumen of the thylakoid. ये अपने को पता है कि वो प्रोटॉन्स जो है वो ल्यूमेन में जमा होता है। रादर साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स जो है वो रेस्पिरेशन के कॉम्प्लेक्स 3 की तरह बिहेव करता है। जैसे कॉम्प्लेक्स 3 में Q साइकिल होता है, वैसे साइटोक्रोम B6F के वहां पर PQ साइकिल होता है, सेम एकदम वैसे का वैसा। और स्ट्रोमा में से एडिशनल प्रोटॉन्स को भी पंप किया जाता है इन द ल्यूमेन, ये भी मैंने तुमको बताया था। तो अपने को पता है कि ल्यूमेन में प्रोटॉन ग्रेडियंट जमा है, उसमें कोई चिंता नहीं है। ठीक है, अब आ जाओ बी वाले पॉइंट पे, नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 214 पॉइंट बी। As electrons move through the photosystems, protons are transported across the membrane, है ना, ये अपने को पता है, साइटोक्रोम B6F के लेवल पे ये होता है। This happens because the primary acceptor of electron, एकदम ध्यान से सुनेंगे, the primary acceptor of electron, अब Z स्कीम देखो, PS2 में प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन है,
तो PS2 में प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन है फियोफाइटिन। तो ये प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, फियोफाइटिन की बात कर रहे हैं। वीडियो पॉज करो और एनसीईआरटी में प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अंडरलाइन करके फियोफाइटिन लिख लो अपने एनसीईआरटी में, राइट इट डाउन। ठीक है, द प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज लोकेटेड टुवर्ड्स द आउटर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, वो कहीं पे भी लोकेटेड रहे, उसमें अपने को इंटरेस्ट नहीं है। ट्रांसफर्स इट्स इलेक्ट्रॉन नॉट टू एन इलेक्ट्रॉन कैरियर बट टू एन एच कैरियर। एच कैरियर मतलब हाइड्रोजन कैरियर। अब ये किस चीज की बात कर रहा है, एच कैरियर यानी, तो ये बात कर रहा है प्लास्टोक्विनोन की। प्लास्टोक्विनोन सिर्फ इलेक्ट्रॉन नहीं एक्सेप्ट करता है ना, जैसे क्यू साइकिल होता है रेस्पिरेशन में, वैसे पीक्यू साइकिल होता है फोटोसिंथेसिस में। तो जैसे रेस्पिरेशन में QH2 बनता है, वैसे यहाँ पर PQH2 नहीं बनेगा क्या बच्चों, बनेगा कि नहीं, है ना। देखो इसको छोड़ो, रेस्पिरेशन याद करो। रेस्पिरेशन में सिर्फ यूबिक्विनोन ही एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो QH2 बनता है। बाकी साइटोक्रोम बी, साइटोक्रोम सी, साइटोक्रोम C1, साइटोक्रोम ए, साइटोक्रोम A3, ये लोग सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करते हैं, है ना। साइटोक्रोम सी से इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम C1 के पास जाता है, फिर साइटोक्रोम सी से कॉम्प्लेक्स 4 के पास जाता है, मतलब साइटोक्रोम ए के पास, फिर साइटोक्रोम ए से साइटोक्रोम A3 के पास जाता है। इवन कॉम्प्लेक्स 1 में भी जो 6 FES सेंटर्स है ना, FMN है, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड कॉम्प्लेक्स 1 में, उन सब में कहीं पर भी प्रोटॉन जाते हैं क्या, नहीं। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों एब्जॉर्ब करने की पावर पूरे माइटोकॉन्ड्रिया में सिर्फ और सिर्फ यूबिक्विनोन के पास है कि नहीं, बाकी सब लोग सिर्फ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, बराबर है। तो यूबिक्विनोन सिर्फ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर नहीं हुआ, हाइड्रोजन एक्सेप्टर हुआ। तो वैसे ही यहाँ पर जो PQ है प्लास्टोक्विनोन, वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर नहीं हुआ, वो हाइड्रोजन एक्सेप्टर हुआ, हाइड्रोजन कैरियर है वो। तो एनसीईआरटी बोल रही है कि वो जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है मतलब फियोफाइटिन, वो अपना इलेक्ट्रॉन ऐसे चीज को डोनेट करता है जो इलेक्ट्रॉन कैरियर नहीं है बल्कि हाइड्रोजन कैरियर है। तो पॉज करके एनसीईआरटी में लिख लो कि ये हाइड्रोजन कैरियर मतलब प्लास्टोक्विनोन की बात कर रहे हैं। हेंस दिस मॉलिक्यूल रिमूव्स द प्रोटॉन फ्रॉम द स्ट्रोमा व्हाइल ट्रांसपोर्टिंग एन इलेक्ट्रॉन, मतलब बेसिकली PQ साइकिल। तो हेंस से लेके इलेक्ट्रॉन तक पूरी लाइन को अंडरलाइन करो और साइड में लिख लो PQ साइकिल, राइट साइड में लिख लो मार्जिन में PQ साइकिल। When this molecule passes on its electron to the electron carrier on the inner side of the membrane, the proton is released into the inner side or the lumen side of the membrane। इनर आउटर का को मारो गोली, बेसिक कंसेप्ट को समझो कि वो स्ट्रोमा में से एडिशनल प्रोटॉन्स को थाइलाकॉइड के ल्यूमेन में पंप करेगा। कौन, PQ। किस लेवल पे करेगा, साइटोक्रोम B6F के लेवल पे। कैसे करेगा, PQ साइकिल करके करेगा। दिमाग लगाने का नहीं है अपने को। कॉम्प्लेक्स 3 मतलब यहाँ पर साइटोक्रोम B6F है, Q साइकिल मतलब यहाँ पर PQ साइकिल है, बाकी सब सेम है, सब सेम है, कुछ फालतू का दिमाग लगाने का नहीं है अपने को, एकदम सेम है। कंफ्यूजन हो रहा होगा तो रेस्पिरेशन के नोट्स खोलो और Q साइकिल रिवाइज कर लो, बस। Q की जगह PQ बोलने का, कॉम्प्लेक्स 3 की जगह साइटोक्रोम B6F बोलने का, कहानी खत्म। बाकी कुछ भी डिफरेंट नहीं है। और उसके बाद साइटोक्रोम C1 आएगा, यहाँ पर प्लास्टोसाइनिन आएगा, और कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है, सब कुछ सेम है। तो ये सेकंड पॉइंट के लिए पूरी जेड स्कीम अच्छे से पढ़ना और ETS पढ़ना रेस्पिरेशन में बहुत जरूरी है। उसके अलावा ये B वाला पॉइंट मैं तो नहीं एक्सप्लेन कर सकता भाई, बाकी मेरे को बाकी किसी का नहीं पता, मैं तो नहीं एक्सप्लेन कर सकता ये पॉइंट, क्या फर्स्ट प्राइमरी एक्सेप्टर और क्या हाइड्रोजन कैरियर, क्या बकवास कर रही है एनसीईआरटी, कुछ समझ में नहीं आता है। जब तक वो रेस्पिरेशन में Q साइकिल नहीं पढ़ा होगा तब तक, जब तक इधर जेड स्कीम नहीं पढ़ी होगी तब तक समझ ही नहीं सकता है। क्या लिख के रखती है एनसीईआरटी, मेरे को तो नहीं समझता भाई। उसके बिना मतलब मैं तो नहीं पढ़ सकता, वो सब डिटेल में पढ़ाए बिना, ठीक है। तो कन्फ्यूजन हुआ तो डिटेल वाले नोट्स पढ़ने का और उसके बाद ही एनसीईआरटी पढ़ने का। पहले मेरे नोट्स पढ़ने का फिर एनसीईआरटी पढ़ने का, 2 ही चीजें करने का, और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आ जाएंगे C वाले पॉइंट पे। द NADP reductase enzyme is located on the stroma side of the membrane, ये मैंने भी बताया था तुमको। Along with electrons that come from the acceptor of electrons of PS1, protons are also necessary for the reduction of NADP to NADPH2.
दीज प्रोटॉन्स आर ऑल्सो रिमूव फ्रॉम द स्ट्रोमा, वही साइटोक्रोम B6F के लेवल पे. Hence, within the chloroplast, protons in the stroma decrease in number, while in the lumen there is accumulation of protons. This creates a proton gradient across the thylakoid membrane as well as a measurable decrease in the pH in the lumen. Obviously बात है ना, प्रोटॉन्स बढ़ेंगे मतलब एसिडिटी बढ़ेगी, एसिडिटी बढ़ेगी मतलब pH डिक्रीज होगा, सही चीज है. Why are we so interested in the proton gradient? This gradient is important because it is the breakdown of this gradient that leads to release of energy. The gradient is broken down due to the movement of protons across the membrane. The gradient is broken down due to the movement of protons across the membrane. Across the membrane मतलब वो membrane को क्रॉस करके अभी ल्यूमेन में से स्ट्रोमा में आएंगे. कैसे आएंगे, कैसे आएंगे? Across the membrane to the stroma through the transmembrane channel. पेज नंबर 215 पे आ जाएंगे सब लोग. Through the transmembrane channel of the FO of the ATPase. The ATPase enzyme consists of two parts. One called the FO is embedded in the membrane and forms a transmembrane channel that carries out facilitated diffusion of protons across the membrane. The other portion is called F1 and protrudes on the outer surface of the thylakoid membrane on the side that faces the stroma. The breakdown of the gradient provides enough energy to cause a conformational change in the F1 particle of the ATPase. F1 में वो अल्फा और बीटा दो प्रोटीन्स रहते हैं, बताया था मैंने तुमको, तो उनका कन्फर्मेशन चेंज होता है विच मेक्स द एंजाइम सिंथेसाइज सेवरल मॉलिक्यूल्स ऑफ एनर्जी पैक्ड एटीपी. ठीक है, तो क्या हो रहा है यहाँ पर, आउटर पोर्शन जो है F1 का जो स्ट्रोमा में प्रोट्रूड आउट हो रहा है ना, उसमें से जब प्रोटॉन्स बाहर निकलेंगे तो वहां पर अल्फा और बीटा प्रोटीन्स रहेंगे, उसमें एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऑलरेडी लगा हुआ रहेगा और उसका कन्फर्मेशन चेंज होगा और कन्फर्मेशन चेंज होने के कारण वो एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ के एटीपी बनेगा. उनको जोड़ने के लिए एनर्जी कहाँ से आ रही है, प्रोटॉन के फ्लो से. प्रोटॉन फ्लो क्यों हो रहा है, क्योंकि फिजिक्स का रूल है कि एवरीथिंग फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. लेकिन फिर प्रोटॉन्स वहां पर इन द फर्स्ट प्लेस अक्यूमुलेट कैसे हुए, फिजिक्स का रूल है वो ठीक है, लेकिन उसको हायर से लोअर आने के लिए पहले ल्यूमेन में प्रोटॉन्स को अक्यूमुलेट तो करना पड़ेगा ना, और प्रोटॉन्स को वहां पर भेजते वक्त तो फिर वो लोअर टू हायर पोटेंशियल रहेगा. फिर वो बिना एनर्जी खर्च किए कैसे करोगे, तो बिना एनर्जी खर्च किए प्रोटॉन्स को ल्यूमेन में फेंकना पॉसिबल नहीं है, एनर्जी खर्च करनी ही पड़ेगी. पर अगर एनर्जी खर्च करेंगे अपन तो फिर तो वो लूप में फंस जाएंगे. एनर्जी खर्च करके प्रोटॉन्स को पंप किया और प्रोटॉन्स जो नीचे उतर रहे उसकी एनर्जी से एटीपी बना रहे, तो इसलिए प्रोटॉन को पंप करने के लिए एनर्जी सिस्टम के बाहर से लानी पड़ेगी. कहाँ से लाई वो एनर्जी अपन ने, तो इलेक्ट्रॉन जंपिंग से. इलेक्ट्रॉन जंप क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनमें एनर्जी है. उनमें एनर्जी क्यों है, क्योंकि लाइट एनर्जी की मदद से अपन ने H2O को तोड़ा है. वो H2O के हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स है, अपन ने H2O भी सिस्टम के बाहर से लाया है और लाइट एनर्जी भी सिस्टम के बाहर से लाई है. तो बाहर के एनर्जी से अपन ने प्रोटॉन्स को स्ट्रोमा से ल्यूमेन में पंप किया है और फिर फिजिक्स के लॉ के कारण ल्यूमेन से स्ट्रोमा में वो आए एटीपी सिंथेसिस के थ्रू और अपने को बढ़िया पैकी एटीपीज बना के दिए. समझ में आ रहा है, ठीक है, क्लियर एकदम. तो अल्टीमेटली सब हो रहा है सनलाइट की एनर्जी से. घूम फिर के अपन आ गए सनलाइट पे फिर से. एनीवेज, नेक्स्ट पैराग्राफ. Chemiosmosis requires a membrane, a proton pump, a proton gradient, and ATPase. Energy is used to pump protons across a membrane to create a gradient or a high concentration of protons within the thylakoid lumen. Energy तो use करनी ही पड़ेगी. ATPase has a channel that allows diffusion of protons back across the membrane. This releases enough energy to activate ATPase enzyme that catalyzes the formation of ATP. Along with the NADPH2 produced by the movement of electrons, the ATP will be used immediately in the biosynthetic reaction taking place in the stroma responsible for fixing CO2 and synthesis of sugars. ठीक है, तो इसके बाद अभी क्या आएगा, इसके बाद आएगा डार्क रिएक्शन मतलब केल्विन साइकिल. तो अपना काफ़ी सारा टाइम हो गया है, 1 घंटा हो गया है, तो अभी मैं इसको रीडिंग को यहीं पे रोक रहा हूँ. नेक्स्ट पार्ट जो बचा हुआ है उसमें खैर C3 साइकिल वगैरह पढ़ने में इतना कुछ इंटरेस्ट नहीं है मेरे को.
C4 साइकिल मेनली पढ़ना है और ब्लैकमैन्स लिमिटिंग रिएक्शंस पढ़ने हैं, क्योंकि उसमें छोटे छोटे एक एक लाइन है जिसके ऊपर क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो वो पार्ट अपन एनसीईआरटी रीडिंग के पार्ट 2 में कंप्लीट करेंगे। अभी के लिए अपन रुकते हैं, ठीक है। कुछ क्वेरीज रही तो मैसेज करेंगे।